Hi everyone, very good morning. Hello and welcome to Goki Play. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। So today we're talking about 5 mistakes in the gym which can injure you। ऐसी कौन सी 5 mistakes या गलतियाँ हो जाती हैं जिससे इंजरीज हो सकती हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे हम in detail with scientific reasons। So stay tuned, we're starting in next few minutes. Right now we are waiting for more people to join the class, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the topic। Hi Sagar, very good morning. Pradeep ji, very good morning. How are you? $124 people live with 150 hearts. Both are increasing. Hi Rupesh. So we're starting in next couple of minutes. Right now waiting for more people to join, and once we have good number of people with us, we will start। प्रदीप जी से आप कहाँ चले गए थे, हम मिस करें। सो आई वॉज ट्रैवलिंग आउट स्टेशन एंड अनफॉर्चुनेटली I could not get proper network for doing the class, so I had to cancel and take a break, but now I'm back and अभी से रेगुलर क्लासेस होंगी। प्रदीप जी, आज 2 क्लासेस है, एक शाम में भी है और एक अभी की है, राइट। सो आई एम ग्लैड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच। So 5 mistakes at gym which can injure you। ऐसी कौन सी mistakes है जो इंजरी का सबब बन सकती है, इंजरी हो सकती हैं जिसकी वजह से, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बताइए, what did you guys have for breakfast today and what workout did you do in the morning? क्या वर्कआउट्स किए आपने सुबह में और क्या खाया आपने ब्रेकफास्ट में? It was very good. It was very very good. I really enjoyed. Had a good time. Thank you for asking. Sheena K, hi. Good morning. How are you? So I'm having this fire का energy drink which you can get it from the Goki Health Store। जब भी मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेशन टाइप लगता है तो आई टेंड टू हैव इट। इसको वर्कआउट के टाइम भी ले सकते हैं। आई एम गुड सर, यू? आई एम ऑल्सो वेरी गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग शीना जी। सो लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट 1 minute। तो बताइए क्या एक्सरसाइजेस किया आपने सुबह से और क्या खाया ब्रेकफास्ट में? टोटल कार्डियो टुडे। वाओ, इट्स कार्डियो डे। तो हो गया सुबह में कार्डियो या फिर अभी करने वाले हो? I also cardio. Okay, great. No muscle training. Okay, so allowing your muscles to recover and doing cardio for better recovery. Great, great. I did muscle training also. Cardio और muscle training साथ में आपने किया? You should not do it together. You should do it on separate days।
Okay, chalo. Now let us end the intro and start with the class so that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. So let us end the intro. Perfect. So intro हो गया and once again welcome to Goki Play. गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल. So today we are talking about 5 mistakes at gym which can injure you. कौन कौन सी mistakes है? What do you guys think? हो गया सर. अच्छा, सुबह में कर लिया आपने कार्डियो. ग्रेट सर. मन हुआ. अच्छा, मन हुआ तो आपने कर लिया. ओके. श्री पवन, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? Can anyone please confirm if the video is working fine for you guys? Video and audio is working fine. क्या आप लोग confirm कर सकते हो? थोड़ा सा interruption हो गया था, तो क्या आप प्लीज़ एक बार confirmation दोगे by giving a thumbs up, या फिर you can type if it is working fine audio and video. आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? confirm बताइए, confirm करके please. Audio video okay. Bhargav ji, thumbs up. Thank you for the confirmation. Sri Pavan says I finished leg workouts, biceps curls. अरे वाह, with weights. आपके बिना I never logged into. Oh, why Sheena ji? But that's really sweet. But you should watch other classes also to learn about health and fitness. First mistake, training and cardio same day. Yes, that's right. Audio video okay. Mistakes is the bicep curls with barbells. They pull it off from the back and not engaging the core. Next is tricep mistake, cable workout, not using the correct posture. Okay, great inputs guys. Yeah, so I was saying कि workout करना, gym जाना, जिम नहीं भी अगर जा रहे हो तो वर्कआउट करना शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल. जैसे हम रोज़ खाते पीते हैं, सोते हैं, उठते बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, हर चीज़ करते हैं हम, राइट? वर्कआउट भी हमको करना ही करना है. अगर जिम नहीं जा पाते हो तो एटलीस्ट घर पे करो. घर पे भी नहीं कर पाते हो तो आप फिज़िकली अपने आप को इस तरह से एंगेज और एक्टिव रखो कि आप थोड़ा सा हेल्थ आपकी मेंटेन रहे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंसिडरिंग द लाइफ स्टाइल वी आर लिविंग टुडे, इट इज़ वेरी सेडेंटरी एंड वेरी लग्जरियस. आप बोलोगे कि अगर मिडिल क्लास लोग कैसे लग्जरी हो रहे हैं, जो बहुत सारे रिच होंगे या अपर क्लास या हाई अपर क्लास, वो लोग लग्जरी. बट इफ़ यू थिंक एंड इफ़ यू कंपेयर today's lifestyle of a common man, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की भी अगर आप लाइफस्टाइल देखोगे, वो भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस है कंपेयर टू पीपल हु यू कैन कंपेयर इट फ्यू सेंचुरीज अगो या फ्यू डेकेड्स अगो. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेके प्राइवेट व्हीकल से लेके एस्केलेटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गई, छोटी चीज़ें बेसिकली. ठीक है. अगर हम स्टेशन पे मिडिल क्लास है, ठीक है, स्टेशन पे भी अगर हम देखेंगे तो, या फिर मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में भी देखेंगे तो स्टेयर्स भी ऐसी हो गई कि एस्केलेटर बन गए कि वो स्टेयर्स तो है लेकिन वो स्टेयर्स खुद चलती है, आपको चलने की ज़रूरत नहीं होती. लिफ्ट्स हैं, आपको क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ईजी, इतना कन्वीनियंट हो गया है. जॉब प्रोफाइल अगर देखोगे इतना ज़्यादा सेडेंट्री हो गया. पहले सेल्स के अभी भी है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ वर्चुअल नाउअडेज, राइट? आई होप एवरीवन एग्रीज टू दैट. क्योंकि पहले डोर टू डोर सेलिंग होती थी, बहुत सारे फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता था फॉर द मीटिंग्स, फॉर द क्लाइंट मीटअप एक्सेट्रा. अब बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई. ऑनलाइन ही वीडियो कॉलिंग हो जाती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो जाते हैं. सेलिंग जो होती है, सेल्स जो होते हैं वो आजकल फ़ोन पे ज़्यादा होने लग गए हैं. डॉक्यूमेंटेशन के लेवल एग्जीक्यूटिव्स बहुत ज़्यादा आते जाते थे, अभी वो भी कम हो रहा है. एंड यू कैन अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन इटसेल्फ, राइट? ये भी हो रहा है. बहुत सारी चीज़ें हो रही है. डिलीवरी गाय या पोस्ट अगर आप देखोगे, छोटी से छोटी चीज़, पहले वो आते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर ट्रैवल करके एक्सेट्रा, चल के वगैरह. आजकल डिलीवरी बॉयज़ भी जो हो गए हैं वो यूजुअली बाइक्स उनको दी गई है ताकि वो कन्वीनियंटली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाए. तो बोलने का मतलब ये है कि दिस थिंग्स आर नॉट गुड.
सॉरी, ये बोलने का मतलब नहीं कि these things are bad or these are not good. These things are very very good, fantastic, but इट शुड नॉट इम्पैक्ट योर हेल्थ. दैट्स द ओनली पॉइंट. आप अपने जॉब प्रोफाइल की वजह से या इन लग्जरीज़ की वजह से या इन चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ को निगलेक्ट मत करो, ठीक है. ट्राई टू बी एक्टिव एज मच एज यू कैन. ट्राई टू गो टू द जिम, ट्राई टू वर्क आउट एट योर होम. जितना आप कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए उतना करो. उसके बाद ये जो आपकी लाइफस्टाइल है चलेगा. आप हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और बाद में आपकी जो वर्क प्रोफाइल है वो भी ऐसी है कि उससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, तो किसका नुकसान होगा? एट द एंड ऑफ द डे आप ही का नुकसान होगा अगर आप इतने ज़्यादा सेडेंटरी रहोगे तो, राइट. क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा ना. दिस डजंट मीन कि आप अपना जॉब छोड़ दो और कोई ऐसा जॉब ढूंढो जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल टास्क होता है. नो, आई रियली डोंट मीन दैट. बट व्हाट आई मीन इज़ कि हाँ, जॉब है, वेरी गुड, परफेक्ट, कीप इट अप, ग्रो, प्रोग्रेस, एवरीथिंग वेरी गुड. बट आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है. हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है. एटलीस्ट आपको 15 मिनट तो देना ही है. 15 मिनट भी नहीं दे पा रहे हो, 10 भी नहीं, 5 भी नहीं, 2 मिनट तो देना ही है. इतना बिजी कोई नहीं होता कि 24 घंटे में से सिर्फ 2 मिनट नहीं निकाल पाएगा, राइट. एवरीवन कैन डू दैट. रोज़ अगर 2 मिनट के लिए भी एक्सरसाइज करो, आज आपने 2 मिनट स्क्वाट्स कर लिए, कल आपने 2 मिनट पुशअप कर लिए, कल 2 मिनट आपने प्लैंक्स कर लिए, उसके बाद कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि आपका जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है, वो पहुंचता रहे. many diseases occur because of poor blood circulation. Not only major diseases but minor issues like your back pain, like your neck pain, like your shoulder pain, stiffness, aches, injury, ये सारी चीज़ें भी lack of blood circulation की वजह से होती हैं. इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डिफ़िशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, राइट. बहुत सारी डिफ़िशियंसी इस वजह से नहीं होती कि आप खा नहीं रहे हो प्रॉपरली, आप स्टार्विंग कर रहे हो या आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है. बहुत सारी डेफिशिएंसीज इस वजह से हो रही है कि आप जो खा रहे हो वो आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं रहा है. क्यों नहीं पहुंच रहा है? बिकॉज यू डोंट हैव प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन. आपने लंच खाया, आप जाके बैठ गए, डाइजेशन होके वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई कैसे होगा? इट्स जस्ट लाइक अ फार्मर जिसने पूरा एग्रीकल्चर किया, पूरे क्रॉप्स में से सारी चीज़ें निकाला, राइस, गेहूँ, जो भी निकाला, और वो लाके गोडाउन में रख दिया. अब वो सप्लाई नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि किसान ने अपना जॉब ठीक से नहीं किया, उसने प्रॉपर ग्रो किया, सारी चीज़ें वो आ गए. अब वहाँ से सप्लाई करना भी तो एक इट्स पार्ट ऑफ द जॉब, राइट. वो कैसे होगा? वो तब होगा जब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रॉपर ट्रक्स होंगी जिसमें सप्लाई करके अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग जगहों पे वो चीज़ें पहुंच रही हैं, वो गुड्स, वो स्टफ्स पहुंच रहे हैं, तब जाके काम कंप्लीट होगा. सिर्फ उगा देना और सिर्फ ग्रो कर देना इज़ नॉट द मोटिव, राइट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उसको सप्लाई करना भी तो ज़रूरी है ना. वैसे आपने खा लिया तो वो जो खाया है वो आपके सेल्स तक का पहुंचना भी एक्सट्रीमली ज़रूरी है. अदरवाइज़ इतना भी अच्छा आप खा लो बट न्यूट्रिएंट्स आपके पास पहुंच ही नहीं पा रहे, एज अ रिज़ल्ट आप डेफिशिएंट हो जाते हो. एज अ रिज़ल्ट फिर कंडीशंस होने लगती है, बीट मेडिकल कंडीशंस और बीट जॉइंट पेन्स, बीट एनीथिंग, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिटनेस, फिजिकल एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली आज की एज में, बिकॉज एज ए सेट फ्यू सेंचुरीज और फ्यू डेकेड्स अगो बहुत ज़्यादा फिजिकल टास्क, कोई एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, जिम नहीं भी करता रहा तो दिन भर में इतनी वॉकिंग हो जाती थी, इतना हैवी स्टफ़ वगैरह उठा लेते थे. तो अभी पहले आप देखोगे तो बच्चों को गोद में लेकर चलना, ये भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ही हो जाती थी, राइट. उठाते थे तो स्ट्रेंथ की वजह से उठाते थे, होल्ड करके रखते थे, एंड्योरेंस, तो अपर बॉडी के मसल्स, लोअर बैक, सारी चीज़ें काम करती थी. अगर आप इसको आज की लाइफस्टाइल में देखोगे तो कैरी बैग्स आ गए, जैसे हम बैग पहनते वैसे बच्चों को बैग में डाल देते, ट्रॉलीज़ आ गए हैं, पुश ट्रॉलीज़ वगैरह, तो इतनी ज़्यादा हो गई, तो फिज़िकल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, ठीक है. इस वजह से एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप घर में कर रहे हो, गुड, वेरी गुड. जिम जाके कर रहे हो तो सुपर्ब, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, ठीक है. इतना बेसिक अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप दे दीजिएगा. नाउ विल प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड द मिस्टेक्स जिम में जाके. So 402 people watching this live with 2730 hearts, which is increasing. श्री पवन थम्स अप. अच्छा, श्री पवन के काफ़ी सारे कमेंट्स भी हैं. मिस्टेक्स इन बाइसेप्स, अच्छा ये तो हो गया. ऑलवेज आई वुड से इवन इन एवरी वर्कर प्लीज एंगेज कोर विद कॉन्ट्रैक्शन. ग्रेट, बिकॉज आई एम टेकिंग सेशन. ऑलवेज दे अप्रिशिएट मी दैट यू ऑलवेज से एंगेज कोर. आई थॉट
first this and then I will go for other weight training. Now only body weight I tell them to do. Okay, one more thing mistake I have seen in plank posture, pull-ups posture, shoulders work out with barbells, and even legs. I have seen posture is most important. Yeah, correct, that's correct. posture बहुत ज़रूरी होता है. क्यों ज़रूरी होता है इसको भी हम समझेंगे. So guys, बाकी लोग भी थम्स अप दीजिए. खाली श्री पवन ने थम्स अप दिया है. Rest of you guys would also want to acknowledge and comment and let me know that if you're understanding or not. If you want me to repeat any pointer, do let me know. ओके चलो, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द मिस्टेक्स इन द जिम, जिसमें से श्री पवन ने 2-4 पॉइंटर्स अच्छे कवर किए हैं. भार्गव जी, थैंक यू फॉर द थम्स अप. राइट, सो सबसे पहली मिस्टेक जो इंजरी को इनवाइट करती है, इट्स लाइक एन ओपन डोर फॉर एन इंजरी, कि दरवाज़ा खुला है, आ जाओ, एनी टाइम वेलकम, विच इज़ नॉट डूइंग प्रॉपर वार्म अप. वार्म अप नहीं करना एक्सरसाइज करने से पहले एज अ साइड इज़ जस्ट एन ओपन डोर, कि इंजरी कभी भी और कैसे भी अंदर आ सकती, अपनी मर्ज़ी से जब चाहे तब आ सकती, ऐसा. ऑलवेज वेलकम. सो वार्म अप इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. करण, हाई, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सो वार्म अप. Why is it important to do warm up? Because when you do warm up, you are preparing yourself mentally and you're preparing yourself physically for that strenuous exercise. No matter what the exercise is. जिम में जाके आप ट्रेडमिल पर रन कर रहे हो, या ट्रेडमिल पर चल रहे हो, या इलेक्ट्रिकल कर रहे हो, या साइकिलिंग कर रहे हो, या मशीन्स कर रहे हो, या डम्बल्स कर रहे हो, या बार्बल्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सिर्फ वेट ट्रेनिंग से लिमिटेड या रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है ये चीज़. ये आपकी कार्डियो के लिए भी होती है. अगर आप आउटडोर रन कर रहे हो, मैराथन कर रहे हो, या ऐसी पार्क में वॉक या रन कर रहे हो, उसके पहले भी आपको वार्म अप करना है. बिकॉज एज अ सेड, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, और सडनली अगर आप कोई इंटेंस एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने लग जाओगे तो मसल्स आपके थोड़े स्टिफ रहते हैं, एक्टिवेट नहीं रहते हैं, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं रहते हो, बॉडी टेम्परेचर उतना हाई नहीं रहता है, हार्ट बीट हाई नहीं रहती है. डायरेक्टली स्टार्ट कर दोगे तो इंजरी हो सकती है. सडन कॉन्ट्रैक्शन या सडन ट्विच ऑफ योर मसल को लीड टू अ मसल टेयर और मसल स्टिफनेस और मसल इंजरी. जॉइंट्स में स्ट्रेन आ सकता है, स्किन टेयर हो सकती है, स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, मसल पुल हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. तो इसलिए आपको वार्म अप करना ज़रूरी है. अ बॉडी विदाउट वार्म अप, एंड जब आप उसको एक्सरसाइज करते हो तो इट इज़ लाइक शुगर, जिसमें इंजरीज आर लाइक बीज. कैसे हनी अट्रैक्ट होती है शुगर पे, राइट, वैसे ही आपकी बॉडी बिना वार्म अप के एक उस शक्कर की तरह है, या उस स्वीट की तरह है जो बीज को अट्रैक्ट करती है. और जो बीज जो है वो इंजरीज़ है, बहुत सारी इंजरीज़ हो सकती है. ठीक है, तो आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि यू डोंट हैव टू एक्सरसाइज विदाउट डूइंग अ वार्म अप. स्पेंड गुड 2 to 5 minutes on your warm up and then you can start with the exercise, ताकि आपकी बॉडी सेफ रहे, आपके वर्कआउट्स का प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होती है. बिकॉज व्हेन यू डू एक्सरसाइजेस, आप जब वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हो, यू एक्टिवेट योर मसल्स, है ना. मसल्स में ब्लड फ्लो आपका पहुंचता है, मसल एक्टिवेशन, मसल फाइबर्स आपके एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से आप प्रिपेयर्ड हो फिजिकली भी मेंटली भी. तो आप अगर 20 किलो उठाने वाले हो तो 22 से 25 किलो तक भी जा सकते हो, क्योंकि आपकी मसल्स प्रिपेयर्ड है, मेंटली भी आप प्रिपेयर्ड हो. वही अगर आप डायरेक्ट जाके वेट उठा रहे हो तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, अचानक आके ये दे दिया गया है टास्क, तो फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं रहती है उस चीज़ के लिए, एंड फिर इंजरीज हो सकती है. सो इट कुड ऑल्सो इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. डूइंग प्रॉपर वार्म अप, स्पेंडिंग 2 to 5 minutes इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर वर्कआउट, जिसके रिजल्ट आपको अच्छे परफॉर्मेंस के तौर पर मिलते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मिस्टेक क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा. मुझे लगा आज भी क्लास नहीं है. क्यों ऐसा लगा आपको करण? वर यू वेटिंग फॉर माई क्लास दिस फ्यू डेज? I will do 5-minute walk treadmill and rotate body part that need to be done. Yes, that is important because सिर्फ treadmill करना वार्म अप के लिए is not a good idea. आपको वो मसल्स भी एक्टिवेट करने हैं जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो. Now break after your session. I will have to take session again. Will be free from Mukesh class. Hectic वगैरह. Good. That's a good problem to be busy.
nice sense. So dynamic static stretch is also important. So dynamic stretch जो है that is your warm up. Static is one more mistake जो हम next pointer पे cover करने वाले हैं. I always get confused how many reps should I perform as per my 3 sets, 15, 12, 10 और 16, 14, 12. वो आपके ऊपर है, the weight you select for yourself. उससे आपका necessary नहीं है कि इतना ही करना है या odd number करने हैं या even number करना है, ऐसा नहीं है. 6 to 10 के अगर आप रेंज में हो that means आप मसल बिल्डिंग जोन में हो. आप अगर 12 to 15 या 12 to 20 के रेंज में हो तो आप टोनिंग या फिर कट डाउन के फेज़ में हो. अब उसके अंदर आप 6 to 10 में आप 6 भी 7 भी 8 भी कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ. जितना भी हो रहा है नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा करो. आज आपके खाली 6 रेपिटेशन हो पाए, नेक्स्ट टाइम आप 7 ट्राई करो, नेक्स्ट टाइम आप 8 ट्राई करो, फिर 9 ट्राई करो, फिर 10 तक पहुंच गया, वेट बढ़ाओ. इसी तरह से जब आप टोनिंग के लिए जा रहे हो 15 आपसे हो गया, वेट बढ़ाओ, फिर आप 12 ही कर पा रहे हो, अगली बार 13 करो, अगली बार 14 करो, फिर 15 हो गया, फिर वेट बढ़ाओ. ऐसे आपको इंक्रीज करते रहना है. डायनामिक स्प्रिंग और स्टैटिक स्प्रिंग, यस करेक्ट. 3 pound thumbs, static should be at the end. हाँ, so that is mistake number 2. Let's discuss about that. Static stretches is not doing stretching after the workout is again one of the mistake which can injure you. When I say injure you, that रियली मीन्स कि आपकी इंजरी हो सकती है उस वजह से, बिकॉज आपने मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट किया है, स्टिमुलेट किया है, पूरी तरह से पंप कर दिया है. अब आपने अपने बॉडी को रिलैक्सिंग हार्मोन एक्टिवेशन के लिए कोई सिग्नल नहीं दिया. जब आप स्ट्रेचिंग करते हो यू इंडिकेट, यू स्टिमुलेट द रिलैक्सिंग हार्मोन्स इन योर बॉडी, जिस वजह से आपके मसल को रिलीफ दी जाती है. ठीक है. अब दिन भर किसी से 8, 10, 12, 15 घंटे काम करवाओगे और उसको बोलोगे रात में भी तुझे जागना है, सोना नहीं है, तो कैसा लगेगा, बीमार पड़ जाएगा, राइट. इसी तरह से आप जब एक्सरसाइज करा रहे हो, स्ट्रेनियस टास्क करा रहे हो, तो उसको रिलैक्स करने के लिए भी वक्त चाहिए. एंड रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिंग हार्मोन्स आना ज़रूरी है, वरना योर बॉडी इज़ अगेन एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन. क्योंकि रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ नहीं किया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, इंटेंस कर रहे हो, अब आपकी बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज़ ही ना, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि हाँ अभी फिर शायद कुछ एक्टिविटी होगी, अभी फिर शायद कुछ इंटेंस, तो बॉडी फिर उसी जोन में रहती है कि आपके एक्सपेक्ट कर रही रहती है कि अभी कुछ ना कुछ और हैवी और कुछ और इंटेंस होगा. योर बॉडी डजंट गेट अ सिग्नल कि हाँ अब वर्कआउट स्टॉप हो गया, अब रिलीज़ हो जाओ, आप रिलैक्स हो जाओ, मसल स्टिफनेस कम हो जाओ, ब्लड फ्लो आपका थोड़ा सा कम हो जाए, जो पंप आता है वो उतर जाए. वो आपको नहीं मिल पाता है अगर आप वो सिग्नल नहीं देते हो अपने बॉडी को. सो सिग्नलिंग योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज द रिलैक्सिंग हार्मोन्स. जब आप रिलैक्सिंग हार्मोन्स का सिग्नल देते हो तभी ही जाके आपकी प्रॉपर रिकवरी स्टार्ट होती है एंड योर मसल स्टार्ट टू रिकवर फ्रॉम दैट वर्कआउट सेशन. आपका जो मोड होता है, द जोन ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम एन एक्टिविटी मोड टू अ रिकवरी मोड. सो इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है. इसके अलावा आपकी मसल की इलास्टिसिटी मेंटेन होती है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ता है एंड रिकवरी एंड हीलिंग बहुत अच्छे से होती है. सो दिस वॉज मिस्टेक नंबर 2. I need toning phase in 16-12. Yes, it is better. Sometimes if you tired with carrying more weights, only one static stretch is enough to. No. अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो तो आप और अच्छे से स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि मसल एक्टिवेशन उतना ही ज़्यादा हुआ है. जितनी ज़्यादा थकान उतनी ज़्यादा नींद चाहिए होती है ना. दिन भर आपने कुछ किया नहीं तो हल्की फुल्की नींद से भी आप थोड़ा रिकवर हो जाते हो. बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस आप थक गए हो तो आपको जैसे कि आप 1 किलोमीटर आज आपने रनिंग किया तो आप 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद में यू गुड. बट आज आपने अगर 20 किलोमीटर मैराथन भागा है तो आपको ज़्यादा 9-10 घंटे की भी नींद लगी, क्योंकि एक्टिविटी उतनी हुई है तो रिकवरी भी उतनी ज़रूरी है. इसी तरह से जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना ज़्यादा इंटेंस कर रहे हो, उतना ज़्यादा स्ट्रेचेस पे भी ध्यान दो, उतना ज़्यादा कूल डाउन पे भी ध्यान दो. समीर, हाय समीर, हाउ आर यू? श्री पवन, थम्स अप. मोहित महाजन, हाय मोहित. So third mistake, not using full range of motion. हाफ रेपिटेशन करोगे तो हाफ ही मसल्स बनेंगे. As simple as that. जितने मसल फाइबर एक्टिवेट होंगे उतने मसल फाइबर्स ही ग्रो होंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 100 मसल फाइबर्स, ठीक है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ऐसे पूरे बाइसेप में आपको डिवाइड करेंगे. दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. इसको एक्यूरेट और पक्का मत समझिए, खाली समझाने का तरीका है. यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है. तो आप अगर हाफ रेपिटेशन कर रहे हो तो नीचे के 20 और 20 एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर के 20 और 20 एक्टिवेट नहीं हो रहे. यानी कि आपने 80 में से सिर्फ 40 फाइबर्स को ही वर्क किया. जब आप 40 फाइबर्स को वर्क कर रहे हो तो 40 फाइबर्स ही ग्रो हो रहे हैं. बाकी 40 फाइबर्स को आपने निगलेक्ट कर दिया तो वो ग्रो ही नहीं होंगे, राइट. मस्कुलर इम्बैलेंस हो सकता है,
क्योंकि आप आधे ही मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हो, जिस वजह से आधी ही मसल्स आपके डेवलप होंगे। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ सकती है। अगर आप हाफ ही कर रहे हो तो पूरी तरह से मसल को स्ट्रेच नहीं मिल रहा है, जिस वजह से मसल की लेंथ पूरी की पूरी यूज़ नहीं हो रही है। हाफ लेंथ आप यूज़ कर रहे हो, और हाफ लेंथ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद आपकी बॉडी का पोस्चर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि एल्बो आपका बेंड हो जाएगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरीली फॉर बाइसेप, दिस इज़ फॉर एनी मसल ग्रुप। ये मैं एग्जांपल आपको बाइसेप का दे रहा हूँ, बट दिस गोज़ फॉर ऑल योर मसल्स। फुल रेंज ऑफ मोशन। या सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज, कैन एनीवन कंफर्म इफ द वीडियो इज़ वर्किंग फाइन? थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था। Can you guys please confirm? Please speak. Yes, I'll try to speak in English as well as in Hindi, Bhargav. For toning, what's more important to achieve target? Your nutrition as well as your exercise. Practical hammer exercise, hammer curl for biceps. ये मैंने किया हुआ है करन, you missed it. Arms workout with water bottle, arms workout with resistance band. So please watch that. Video is fine. Okay, thank you for the confirmation. So ये थर्ड हो गई। फोर्थ हो गई कि फोकस नहीं है, कर कुछ और रहे हो, सोच कुछ और रहे हो। इफ़ यू रीडिंग समथिंग, इफ़ यू वांट टू बाय हार्ट इट, आप जो पढ़ रहे हो वो समझना चाहिए, उसमें ध्यान होना चाहिए। अगर आप कुछ और सोचते सोचते आप उसको पढ़ रहे हो, आपको कभी बाय हार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस कहीं और है। हाँ, आप रीडिंग कर रहे हो, आपको कोई जो देख रहा है, कोई थर्ड पर्सन आपको देखे, उसको लगेगा कि हाँ कितना अच्छे से पढ़ रहा है, राइट, बट आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो याद आपको नहीं होगा। इसी तरह से एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो, मूवमेंट तो आप कर रहे हो, कोई आपको देख रहा है, उसको लगेगा कि हाँ ये एक्सरसाइज कर रहा है, बट आपका फोकस नहीं हो वहाँ पे, तो मसल एक्टिवेशन आपका नहीं हो पाता। और जब मसल एक्टिवेशन नहीं होगा और आप कोई हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो, तो मसल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव अ फ्रेंड विथ यू, राइट, आप उसको बोलोगे कि चल मैं तुझे धक्का देता हूँ, आई विल पुश यू, यू ट्राई टू प्रोटेक्ट दैट पुश, या फिर यू ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। जब आप उसको बोल के धक्का दे रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइट स्टिफ रहेगा, आप धक्का दोगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट उसको नहीं होगा। बट वही चल रहे हो आप, ठीक है, नॉर्मल चल रहे हैं, आपका दोस्त आपसे थोड़ा आगे चल रहा है, आप पीछे चल, अचानक जाके धक्का दे दोगे, गिर जाएगा। क्यों? व्हाट वाज द डिफरेंस? धक्का आप ही ने दिया, धक्का खाया उन्हीं ने, धक्का उतने ही फोर्स में दिया। व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंस वाज कि उनका फोकस नहीं था, एक्टिवेशन नहीं था। जब आप उनको बोल के करते हो तो उसका फोकस होता है, एक्टिवेशन होता है। जब आप बिना बोले अचानक कर रहे हो तो उसको धक्का लग के वो गिर सकता है। इसी तरह से व्हेन यू focus on your exercise, you activate your muscles and your muscles are prepared for the exercise. जब आप फोकस नहीं है, कुछ और सोच रहे हो और वेट आप उठा रहे हो, तो इंजरी हो सकती है। क्लियर है गाइस? ये है हमारा फोर्थ मिस्टेक। ठीक है, सो वार्म अप नहीं करना, कूल डाउन नहीं करना, फोकस नहीं रहना। ओके, सो फिफ्थ मिस्टेक इज़ आई वुड कॉल एज ईगो लिफ्टिंग। किसी और को देख रहे हो उतना वेट उठा रहा है, किसी और को देख रहे हो वो एक्सरसाइज वो कर रहा है, उसको इमिटेट करना विदाउट गेटिंग अप टू दैट लेवल इज़ अ बिग मिस्टेक। ये सबसे ज़्यादा इंजरी इस वजह से भी होती है कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है। नॉट नेसेसरीली आउट ऑफ जेलेसी, आउट ऑफ नेगेटिव फीलिंग्स, बट इट कुड बी एज एन इंस्पिरेशन कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो कितना अच्छा ब्यूटीफुली एक्सरसाइज कर रहा है, मुझे भी करना है, मुझे भी। सो ऐसे नहीं कि वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये नेसेसरीली नहीं है। इंस्पिरेशन से भी हो सकता है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, व्हाट ब्यूटीफुली परफॉर्म, लेट मी ऑल्सो ट्राई। ये भी एक मिस्टेक होती है, बिकॉज वो जो कर रहे हैं एक्सरसाइज हो सकता है वो सालों से कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ लेवल अलग है, उनकी हर चीज़ अलग है। आप उस लेवल पर जब तक नहीं पहुँचते तब तक आपको वो अटैम्प्ट नहीं करना है। बिगनर्स लोगों में बहुत ज़्यादा देखा गया है, नया नया जिम कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं तो वो जाके कर रहा है, उसको देख रहे हैं कुछ और कर रहा है, वो जाके कर रहा है। ये मत करिएगा, बिकॉज आप अपने आप को पहले बेस आपका स्ट्रॉन्ग बनाइए, बिल्डअप कीजिएगा, एक्सरसाइज सीखिए, मसल एक्टिवेशन सीखिए, फिर आप वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज द पर्सन हुम यू आर ट्राइंग टू कॉपी इज़ वर्किंग आउट सिंस क्वाइट अ टाइम, जिस वजह से वो एक्सरसाइज को ब्यूटीफुली कर पा रहे हैं। आपको उस लेवल पे पहले पहुंचना है। ठीक है, आप फॉर एग्जांपल एक नया ड्राइवर गाड़ी सीख रहा है, ठीक है, वो किसी को देख रहा है कि 100 की स्पीड में गया, तो आपको या तो जेलेसी होगी, या फिर आपको गुस्सा आएगा कि कैसे कितना फास्ट चले, या फिर आप इंस्पायर हो गए, वाह कितना ब्यूटीफुली वो ड्राइव करा, फास्ट है बट वेरी सेफ एंड वेरी कंट्रोल पे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 100 की स्पीड में चलाना है, राइट, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया, आप अगर इतना फास्ट चलाओगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह से आप जब किसी को देख रहे हो, येस यू शुड एडमायर, यू शुड लुक आफ्टर देम, बट आप अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए, उतना लेवल पर लेकर आइए, फिर आप उसको कॉपी कीजिएगा। ठीक है,
Bhargav, I'm going to plan to go gym after a year gap. Shall I start from beginner? Yes, yes. Start with the beginner level because बहुत समय से since a year your body is not using any kind of weights, dumbbells, barbells, exercises. So you need to let your body, let your muscles adapt to it again. Yes, beginner level में what happens कि it needs a lot of time because you're learning it. And after a gap, if you're doing it, your body knows, your muscle knows because you have done it before. So you will catch up really fast. Okay, so the progress would be very quick, very fast, but you need to start with basic level so that your body adjusts to that, and then you can level up again since you left to that level. Okay, before should I do any workout at home? Not necessarily gym में भी आप कर सकते. You can start with the workouts in the gym itself, but start a little slow and gradually proceed. Muscle size is how much important in toning? Very important because muscles होंगे तो ही आप टोन करोगे, है ना. muscles ही नहीं है तो टोनिंग किसकी करोगे आप, हड्डी होगी. आसिफ हुसैन जी वालेकुम अस्सलाम, आप लेट हो गए. वी अबाउट टू साइन ऑफ. सो गाइज नेक्स्ट क्लास शाम में है, सो प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर दैट. अभी नेक्स्ट क्लास 11 बजे, फिर 11:30 बजे कोच मुकेश की, 12 बजे वनीता, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा. सो स्पेंड सम मोर टाइम ऑन गोकी प्लान, लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. एंड जैसे ही ये क्लास अभी एंड होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का. सो डू रेट एंड ऑल्सो टाइप व्हाट यू लाइक अबाउट द क्लास. Type your queries, type your suggestions if you have any, and also write what did you like. So signing off for now. Have a good energetic afternoon everyone, and be the force.